بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زچہ عورت کے لیے مفید ٹوٹکا۔ سردی ہو یا گرمی، پنجیری زچہ عورت کو ضرور کھلائی جاتی ہے کیونکہ یہ بچے کی پیدائش سے قبل اور بعد کی ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین غذا ہے۔ منہ کے دانے اور نشانات کے لیے بہترین ماسک ملتانی مٹی، ٹماٹر کا جوس، لیموں کا رس ہے۔ ان تمام اجزاء کو برابر مقدار میں ملا کر 15 منٹ چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کریں اور پھر اس کے لاجواب کمال دیکھیں۔ لیموں اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ 10 منٹ کے بعد ہلکے ہاتھوں سے مساج کر کے چہرے سے اس کو اتار لیں اور صاف پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ رات کو سونے سے پہلے اصلی شہد اور بلائی باہم ملا کر چہرے پر لگائیں اور اس سے چہرے کے داغ دھبے اور دانے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جاپانی پھل دل کی بیماریوں میں کھانا فائدہ مند ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، قوت مدافعت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وزن کی کمی کا سبب بنتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے اور معدے کی خرابیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ پودینے کے پتیوں کے کمال اور فوائد۔ پودینے کی چند پتیاں پانی میں ابال کر صبح نہار منہ پینے سے نہ صرف رنگت نکھرتی ہے بلکہ پیٹ کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ بار بار بیمار ہو جانے کی وجوہات کیا ہیں؟ بار بار بیمار ہو جانا مطلب یہ کہ قوت مدافعت اور امیون سسٹم کمزور ہے۔ اس کے لیے قوت مدافعت کو مضبوط بنائیں، اپنے کھانے پینے کا نظام بہترین کریں، یعنی کہ صحت مند متوازن غذا کا استعمال کریں، ملٹی وٹامنز کا استعمال کریں، وقت پر سوئیں، وقت پر جاگیں، روزمرہ زندگی میں ورزش ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کو جلد شفا ہو جائے گی۔ تازہ ایلو ویرا کا جوس پینا فوائد سے بھرپور ہے۔ ایلو ویرا میں پانی کی کافی مقدار ہوتی ہے، اس لیے یہ جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا، جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ ایلو ویرا بالوں اور سکن کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ایلو ویرا اکیلا ہی فیس پر لگانے سے چہرے پہ رنگت نکھرتی ہے اور چہرے کے داغ دھبے پرانے نشانات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کو صاف کرتا ہے، جگر کو بھی صاف رکھتا ہے، قبض سے بچاتا ہے، جسم میں خشکی نہیں ہونے دیتا، جلد کو صاف کر کے داغ دھبوں کیل مہاسوں سے صاف رکھتا ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے اوپر ذکر کیا ہے، معدے کی تیزابیت دور کرتا ہے، شوگر فری ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق اگر آپ کوئی امتحان دے رہے ہیں یا کسی پڑھائی میں مصروف ہیں تو اگر پڑھنے کے بعد آپ فوراً سو جائیں تو آپ کو اپنا پڑھا ہوا یاد رہے گا، لیکن اگر جاگتے رہیں گے تو بھولنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دن بھر بیٹھے رہ کر کام کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ بنا جھکے بیٹھیں، بنا کندھوں کو جھکائے چلیں تاکہ آپ کی کمر کی ہڈی پر زور نہ پڑے اور اس میں درد نہ ہو۔ ایکٹیو رہنے کی کوشش کریں، روزانہ کی ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوتی ہے اور اس پر زیادہ وزن ڈالنے سے درد بڑھتا ہے۔ کمر درد کے لیے بہترین تدابیر: چھوارے کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے بھی کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چھوارے اور ادرک ماہواری کے دوران بھی پیا جائے تو ماہواری ٹھیک ہوتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیموں کا رس 1 چمچ، لہسن کا رس 1 چمچ، پانی 2 چمچ لے کر آپس میں ملا لیں۔ یہ خوراک صبح و شام استعمال کریں، کمر درد جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ گہری اور پرسکون نیند کو
गहरी और पुरसुकून नींद को तरसते अहबाब मतवज्जा हों। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, बेख्वाबी की शिकायत रहती है, आधा चाय का चम्मच जीरा स्याह लेकर पके हुए केले के गुदे में मिक्स करें और बिस्तर पर जाने से 1 घंटा पहले खाएं। इंशाअल्लाह गहरी नींद आएगी। बाल झड़ रहे हैं तो इस टोटके से के फवायद पढ़ें। 2 खाने के चम्मच अलसी के बीज 1 प्याली पानी में गाढ़ा होने तक उबालें। फिर छान कर इसमें चौथाई प्याली एलोवेरा जेल में मिलाएं। इसे बर्फ के क्यूब में रख कर जमा लें। इस अमेज़े को सर की जिल्द में लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर शैम्पू से बाल धो लें और फिर कमाल देखें। टांगों के दर्द से निजात के लिए टोटका: 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम खजूर मिला लें और सुबह शाम छोटा चाय के कप वाला दूध के साथ इस्तेमाल करें। आप टांगों के दर्द को भूल जाएंगे और फिर आप इसका एक अच्छा असर देखेंगे। गाजर का मुरब्बा सोने या चांदी के वर्क के हमरा खाने के बाद बेहद फरहत बख्श और मकवी है। हर उम्र के मर्द और ख़वातीन के लिए ये लाजवाब चीज़ है। मूली के सबज नरम नरम पत्ते तोड़कर रख लीजिए। खाने के दरमियान 1 मूली और इसके पत्ते खाइए। इसके खाने से पेट कम होगा। इस सलाद में आप गाजर शामिल कर सकते हैं। हाथ जल जाए तो कपड़ों में डालने वाला नील और टूथपेस्ट मिलाकर लगा लें। जलन होगी और ना ही कोई दाग पड़ेगा। अगर नज़र कमज़ोर हो तो ये मुजर्रब अमल करें। जिसकी नज़र कमज़ोर हो उसको चाहिए रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 4 अदद खजूरें खाएं। क्योंकि कम अज़ कम 1 माह इस्तेमाल करें। शर्तिया बात है, ऐनक का नंबर कम हो जाता है। सुर्ख गाजर जिस्म में खून बढ़ाती है, ताकत पैदा करती है, चेहरे की रंगत को निखारती है और हुस्न पैदा करती है, पेट के कीड़ों से निजात दिलाती है, पेशाब की जलन और सोजिश को दूर करती है, खांसी और सीने के दर्द में आराम पहुंचाती है, वहम को दूर और दिमागी परेशानी को ख़त्म करती है, मादे तौलीद को गाढ़ा करती है और इससे पेशाब खुलकर आता है। कच्ची गाजर खाने से बीनाई में इजाफा होता है। रोजाना गाजर के जूस का 1 गिलास पीने से दिल का दर्द नहीं होता। गाजर का जूस दिल के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। गाजर का हलवा दिमागी और जिस्मानी और मर्दाना ताकत के लिए बेहद मुफीद है। गाजर का हलवे के बारे में जो कहा जाता है कि मोटापा करता है, बिल्कुल गलत है। गाजर का हलवा बिल्कुल मोटापा नहीं लाता। विटामिन डी की कमी हड्डियों की तकलीफ को ख़त्म करती है। रोज़ाना 12 बजे 1 अदद गाजर, खीरा और टमाटर को कद्दूकश कर लें। ये फीका सलाद बाकायदगी से 5 हफ्ते लगातार खाने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। यानी हड्डियों में जो दर्द होता है वो विटामिन डी की कमी से ही होता है। खून की कमी दूर करने की कुदरती कैप्सूल्स: अगर किसी को खून की कमी हो और किसी सूरत पूरी ना होती हो तो इलाज के साथ ये सब्जी भी खाने से खून की कमी दूर होती है। हर तीसरे दिन लहसुन की 5 तुरियां काटकर अपने सालन में डालकर खाएं। इंशाअल्लाह खून की कमी दूर हो जाएगी और दिल की बीमारी से भी सेहतयाब हो जाएंगे। दांतों के पुराने से पुराना मर्ज छोटे से टोटके से ठीक हो जाएगा। जिस शख्स के दांत हिलते हों, दांतों में पीप हो, रेशा हो, मसूड़े दांत छोड़ रहे हों, ठंडा गर्म लगता हो, दांतों में दर्द हो, इन सब परेशानियों से निजात के लिए छोटा सा टोटका बहुत कारआमद है। गेरो 50-20 ग्राम, सफ़ेद फटकरी 20 ग्राम, सफ़ेद नमक देसी 20 ग्राम, ग्लिसरीन 50 ग्राम ले लें। इन तमाम चीज़ों को खूब मिक्स करके
सफूफ बना लें या फिर इसका महलूल बना लें, यानी कि लिक्विड टाइप। इस महलूल को दांतों के अंदर बाहर अच्छी तरह मलें। चंद मिनट तक कुल्ली ना करें। 10 मिनट बाद नीम गर्म पानी से कुल्लियां करें। इस आदत को जिंदगी का मामूल बना लें। दांत की तमाम तकलीफ इस छोटे से टोटके से खत्म हो जाएंगी। दांत मजबूत होंगे और दांत चमकदार भी हो जाएंगे और मसूड़े भी इससे मजबूत रहेंगे। नाज़रीन, कैंसर ऐसा मर्ज है जो अब काबिल इलाज तो है, मगर उसके जिस्म पर मुतअद्दिद मुज़र असरात मुरतब हो जाते हैं, जबकि एडवांस लेवल की बीमारी आमतौर पर इलाज होती है। मगर क्या आपको मालूम है कि बेशतर मर्दों में कैंसर का मर्ज दीगर अमराज या अलामात की शक्ल में ज़ाहिर होता है, और चूंकि मर्द डॉक्टरों के पास जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए इनकी जानिब से इसे नज़रअंदाज कर देना आसान होता है। मुंह में छाले अगर ठीक हो जाएं तो परेशानी की बात नहीं, और ना ही दांत का दर्द काबिल फिक्र होता है। मगर जब छाले ठीक ना हो तो दर्द जम कर रह जाए, मसूड़ों या जुबान पर सफ़ेद सुर्ख निशानात बन जाएं, या जबड़ों के करीब सूजन या बेहिस्सी महसूस हो, तो ये मुंह के कैंसर की अलामात हो सकती हैं। ख़ास तौर पर जो मर्द सिगरेट नोशी या तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, उनमें इस कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इन अलामात की सूरत में डॉक्टर से फौरी रुजू करना चाहिए। ऐसे खांसी जो 3 हफ्ते या इससे ज़ायद अरसे तक बरकरार रहे, जबकि बुखार या एलर्जी वगैरह भी ना हो, तो ये फेफड़ों के कैंसर की इब्तदाई अलामात हो सकती हैं। नाज़रीन, खून के कैंसर की सूरत में रूनुमा ज़ाहिर होती हैं, ख़ास तौर पर अगर खांसी में खून आने लगे। पैरों के कैंसर के शिकार अफराद को सीने में दर्द भी हो सकता है, जो सीने से कंधे या बाजू के नीचे तक फैलता हुआ महसूस होता है। नाज़रीन, अगर फुजले में खून आ रहा हो तो ये आंतों के कैंसर की अलामत हो सकता है। अगर ये अलामत सामने आए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि कैंसर से हटकर ये कोई और मर्ज भी हो सकता है, क्योंकि फुसले में खून का आना मामूली नहीं होता। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।